So, hello and welcome to this special interview on Dev Sports. I'm Sneashish Mukherjee, and today I have been joined by someone who has more than 30 years of cricket coaching experience, and he has worked with top organizations. And obviously, we have to mention that he has worked with top talents for all over these years. For former cricketers, be it men or women, from Yuvraj Singh to Rima Malhotra to Veda Krishnamurti, there are so many names. And right now, even there's a name that has been roaming around, and she has managed a place in the upcoming ICC Women's T20 World Cup for India. Nandini Sharma, the uncapped Indian pacer, has managed a place for the World Cup, and Sir has worked with her also. So to talk about her and that journey, we have none other than Sukhvinder Bawa sir. Sir, welcome to Rep Sports. Thank you, Mukherjee. Yes. Okay. Thank you, sir. Sir, first of all, obviously, we'll get to know, the stint that you had with, Nandini. But before that, would you like to share the reaction of yours when you got to know that Nandini Sharma has been picked for the World Cup squad? Actually, she called me. उसने ही मुझे बताया that I am picked for this thing. I don't know किसी और को उस पे ट्रस्ट था या नहीं था, but I was very sure भी वो पिक हो जाएगी. And after WPL, I was very confident. Somehow one of the matches in Bangkok, I think it was emerging trophy something. She got injured. उसकी जो वेब थी वो फट गई थी, but still she managed. फिर उसने अभी कैंप लगाया. तो नाउ शी इज डूइंग वेरी वेल. आज भी शाम को एक्चुअली दे हैव अ कैंप इन बेंगलोर फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो, और शी विल बी Yes. फ्लाइंग टू बेंगलोर. तो अभी शाम को भी वो ग्राउंड में थी और बैटिंग करके गई, बॉलिंग करके गई. एक्चुअली आप लोग उसको बॉलर समझते हो, लेकिन आई एम Yes. ट्राइंग टू ग्रूम हर एज अ बैट्सवुमन ऑल्सो. तो Nice. इट इज माई फोर्टे. मैं आई हैव टोल्ड हर दैट you must bat also like a proper batsman. So Hmm. in coming days, I'm sure she'll improve her batting also. Yes, absolutely. I think it will be, great thing for India to have another all-rounder coming up if Nandini Sharma, starts to bat that much well. But sir, the stint that you had, क्या आप बोल सकते हो कि आपको जर्नी कब शुरू हुआ नंदिनी के साथ? आप आपने क्या देखा नंदिनी के, मतलब जो एक चीज जो आपको अट्रैक्ट किया कि नंदिनी इस वजह से इंडिया खेल सकती नंदिनी जब मेरे पास आई थी वे बैक 6-7 years बैक, जब वो मेरे पास आई थी, तो आई कुड सी that spark of a fast bowler, that aggression of a fast bowler in her, and kind of aggression as a batsman also. I know you people, everybody is taking her as a bowler only, but Yes. on a daily basis मैं उसको बैटिंग भी करवाता था साथ में, so that I can groom her as a all rounder. तो बॉलिंग में the best thing was she was quick. I mean for her age वो बॉल अच्छा फेंकती थी. तो it was just matter of time she learned all the slower ones and that. तो with the passage of time उसने किया, and उसने WPL में she showed that she how capable she is. Yes. Yeah. यस यस एब्सोल्युटली। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि डब्ल्यूपीएल में हम लोग देखे, स्पेशली डेथ ओवर्स में जो स्लोअर्स वेरिएशन वगैरह जो बैटर्स डिसीव हुआ, हम लोग देखे द हैट्रिक, द 5 विकेट हॉल, एक्सीलेंट इट वाज। बट वही जो आपने बोला, क्या क्या कुछ स्पेसिफिक ड्रिल और कुछ था जो उसने टाइम के साथ डेवलप किया, स्पेशली रिगार्डिंग द वेरिएशंस? हाँ, वेरिएशंस उसने डेवलप किए. स्पीड उसके पास थी, स्विंग उसके पास ऑलरेडी थी. विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ग्रूम हो रही थी. आउट स्विंग इन स्विंग उसका हो रहा था. लेकिन स्लोअर वंस, स्लोअर बाउंसर एंड ऑफ स्पिन्स, ये सारी चीजें जैसे जैसे वो खेलती गई, जैसे उसने चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट किया और नॉर्थ जोन खेली और वो सब करती गई, और वो उसके ऊपर उसने बहुत काम किया. उसने ऊपर उस बहुत काम किया, और सरप्राइजिंगली उसका फर्स्ट WPL था, लेकिन शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट. आई मीन यू कैन, आपने उसको देखा ही होगा. और यस। गॉड विलिंगली उसका सब कुछ जो था वो क्लिक भी किया. सब कुछ क्लिक भी हम्म। किया, और उसकी जर्नी शायद कोई नहीं सोचता होगा भी इंडिया खेलेगी. आई डोंट, मुझे नहीं लगता कि लोग ज्यादा उसके बारे में सोचते होंगे, पर आई वॉज श्योर भी वो खेलेगी एक दिन. और ये भी सरप्राइजिंग नहीं है भी ये जल्दी आ गया टाइम, ऐसा भी नहीं है भी अचानक आया. क्योंकि मैंने उसकी जर्नी देखी थी, तो मैं उसको हमेशा बोल रहा था भी इट इज ऑन द ऑन द कार्ड्स. अभी ये ब्लिंक पे, एज पे है, तो कभी भी अंदर आएगी, है ना, कभी भी एकदम। अंदर आएगी एकदम. हाँ. तो फॉर्चुनेटली
वर्ल्ड कप में उसको चांस मिल गया, विच इज अ वेरी बिग बिग थिंग, यू नो, टू रिप्रेजेंट अ कंट्री स्टेट वे इन अ वर्ल्ड कप इज अ बिग डील। एंड शी यस। या, और मुझे लगता है वो वहां पर भी अच्छा परफॉर्म करेगी। यस। वही है मेरा, क्योंकि सर जैसे आप बोले कि प्लेइंग कंट्री के लिए प्ले करना तो एक बहुत बड़ा डील है, और वो भी स्ट्रेट वर्ल्ड कप में आपका डेब्यू हो सकता है एक वर्ल्ड कप गेम में। और आप सोच ही सकते हो इंडिया अपना वर्ल्ड कप शुरू ही करेगा पाकिस्तान के खिलाफ। तो पाकिस्तान के खिलाफ अगर नंदिनी डेब्यू कर रहे हैं वो अलग प्रेशर ही होगा। बट वही मेरा क्वेश्चन है सर, इंग्लैंड कंडीशंस हम लोगों को पता है कि सीमर्स को थोड़ा मदद रहता है उधर, जो कंडीशंस होता है पिच वगैरह एवरीथिंग। सो दे आर नंदिनी का जो जो मतलब ट्रेड्स है, उस हिसाब से आप कैसे देख रहे हो इंग्लैंड का कंडीशन कैसे उसको हेल्प कर सकता है? इंग्लैंड का कंडीशन ऐसे हेल्प कर सकता है, उसका स्विंग तो नेचुरल है ना, दोनों हम्म। आउट स्विंग इन स्विंग उसका होता है, और ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड उसने सीख लिया है। तो हम्म। आई थिंक उसको, उसका जो वर्ल्ड कप है बहुत बढ़िया जाने वाला है, एंड शील परफॉर्म एक्स्ट्राऑर्डिनरीली, शील परफॉर्म। यस यस। और सर सिर्फ मतलब व्हाइट बॉल में नहीं, टेस्ट स्क्वाड में भी नंदनी का सिलेक्शन हुआ है। तो जो सच बात है सर कि वुमेन्स क्रिकेट में ज़्यादा तो टेलीकास्ट नहीं होता है, तो रेड बॉल का तो हम लोगों का उतना पता नहीं होता है डोमेस्टिक क्रिकेट। फिर भी व्हाइट बॉल का थोड़ा बहुत अभी टेलीकास्ट होता है तो हम लोगों को पता चलता है। आप काम किए हो रेड बॉल में, आपको क्या लगता है क्या स्पेशलिटी ला सकते हैं नंदिनी शर्मा विद द रेड बॉल? रेड बॉल में भी आपको मैंने बताया ना, शी इज गॉट द स्विंग, उसके पास हम्म। स्विंग है, इन स्विंग आउट स्विंग दोनों ही अच्छा करवाती है, और कटर्स भी अच्छा यूज करती है वो, ठीक है। एंड वेरी इंटेलिजेंटली शी बोल्स, मतलब ऐसा नहीं है अभी जो वो एक आ रही है वो रीड करती है, बैट्समैन को रीड करती है, और अकॉर्डिंगली सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो जो है उसको वो इम्प्लीमेंट करती है। तो सेम वे अगर वो टेस्ट उसमें रेड बॉल में भी खेलती है तो शी इज गॉट द आर्ट, उसके पास वो कला है, आर्ट है स्विंग बॉल करने का, विच इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट, है ना। तो आई होप शील डू गुड देयर ऑल्सो। या, यस यस एब्सोल्युटली। सर नंदिनी जैसे प्लेयर के लिए डब्ल्यूपीएल एक बड़ा मंच होके उभर के आया, राइट? मतलब अभी 4 साल हो गए डब्ल्यूपीएल का, कितना सारे नए प्लेयर्स को हम लोग देखे आते हुए अच्छे परफॉर्म करते हुए, फिर इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया। अभी नंदिनी शर्मा भी वही करने जा रही है। आपके नज़र में डब्ल्यूपीएल का इम्पोर्टेंस कैसा रहा लास्ट 4 साल में? आप कैसे देखो, क्योंकि आप इतना साल से इतने सारे क्रिकेटर्स के साथ काम किए हो, तो आप थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बोल सकते हो। देखिए ये डब्ल्यूपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, डब्ल्यूपीएल और आईपीएल, जिसमें कि आपने देखा होगा डब्ल्यूपीएल में भी जो फॉलो लोग कर रहे थे क्रिकेट को, जो बीसीसीआई ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है, मनी वाइज इक्वली कर दिया, है ना, विच इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग किसी भी विमेन क्रिकेटर की लाइफ में, क्योंकि एट पार करना इज़ अ बिग डील। आप लड़कियां भी उतनी मेहनत कर रही हैं, लड़के भी उतने कर रहे हैं, तो अगर लड़कों को मिल रहा है तो दे शुड ऑल्सो गेट द सेम थिंग, है ना। तो शायद इस चीज ने इनकरेज किया, और डब्ल्यूपीएल में आपने देखा होगा क्राउड भी काफी था इस बारी, अनलाइकली अदर इयर्स और पहले जो पास में, तो क्राउड भी था। तो होता क्या है कि इंटरनेशनल में और एक डोमेस्टिक में फर्क क्या है, सिर्फ मैटर ऑफ नर्व्स कंट्रोल यस करना। यस और यस। नर्व्स आप कहाँ पर लूज करते हो, जहां पर आप क्राउड होता है, आपको होता है यार इतने 40,000 लोग देख रहे हैं। जब वो फियर फैक्टर आपके दिमाग से निकल गया क्राउड का, और जब आप आईपीएल में सब इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेल रहे हो, वो आपके साथ टीम में भी हैं, अगेंस्ट भी हैं, तो चाहे वो रेड बॉल है चाहे वाइट बॉल है, आपको एक एक्सपीरियंस, एक जो फियर फैक्टर है, एक जो नर्व्स कंट्रोल करना, वो आ जाता है। जब वंस यू गेट दैट, इट इज ऑल हेयर, जब वो चीज आ गई आपको एक बारी, तो यस। नेचुरली जब आप वर्ल्ड कप खेलेंगे या जब आप टेस्ट सीरीज खेलेंगे, रेड बॉल हो वाइट बॉल हो, जब वो फैक्टर एक दूर हो जाता है, विच इज अ वेरी मेजर फैक्टर। हम्म। लोगों, आप देखिए कितने क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो कि डोमेस्टिक में बहुत अच्छा करते हैं, बॉयज इवन, मतलब बड़े, आई कैन नेम मैनी ऑफ देम, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में देवर किंग, देवर लाइक किंग्स इन इंडिया, लेकिन हम्म। जैसे इंटरनेशनल में जाते थे और वो वहां पे फेलियर हो गए। तो तब शायद ना तो क्राउड डोमेस्टिक क्रिकेट में होता था, ना आईपीएल थी, है ना, यस। ना कोई डब्ल्यूपीएल थी, ऐसा कुछ नहीं था। तो लेकिन डब्ल्यूपीएल ने जैसे आईपीएल में स्टैंडर्ड्स फील्डिंग के और गेम को तेज करने के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई कर दिए हैं, तो यस। नेचुरली उस चीज का फर्क जो है वो रेड बॉल पे भी पड़ेगा, साइमल्टेनियसली उस पे भी पड़ेगा, वो भी गेम तेज हो जाएगा। तो सारी चीजों का जो डब्ल्यूपीएल या आईपीएल का इफेक्ट बहुत ज्यादा है, डब्ल्यूपीएल का लड़कियों के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट है, क्योंकि आप ट्रेड की हर चीज सीख रहे हो,
आप हर इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ खेल रहे हो, आप क्राउड को फेस कर रहे हो, और कितनी क्रंच सिचुएशन होती है, यस। कितनी क्रंच सिचुएशन होती है, आप उसमें से निकल रहे हो। अगर आप सब कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हो डब्ल्यूपीएल में, तो व्हाई नॉट इन इंटरनेशनल इंटरनेशनल। क्रिकेट? यस। Yes, yes, absolutely. By the way, I would love to mention that सर के सुपुत्र राज बावा भी अभी खेल रहे हैं आईपीएल। आप लोगों को, बहुत लोगों को मालूम ही होगा, राज बावा बहुत परिचित नाम है क्योंकि अंडर 19 लेवल से हम लोग देख रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। अभी मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहा है, तो होपफुली राज बहुत अच्छा करे और हम लोगों को और भी अच्छा मौका मिले उनको देखने में, इंडिया इंडिया के लिए खेलने में भी, तो देखते हैं उसका भी। बट सर, माय नेक्स्ट टू क्वेश्चंस बिफोर रैपिंग अप। चंडीगढ़ वुमेन्स क्रिकेट, आई थिंक चंडीगढ़ वुमेन्स क्रिकेट की आप बात करें तो रिसेंट ईयर्स में बहुत सारे टैलेंट उभर के आए हैं। आप काशवी गौतम को ले लो, अमनजोत भी खेल चुके हैं चंडीगढ़ से। अभी नंदिनी शर्मा। पिछले पिछले में भी एक दो बहुत टैलेंट आए थे जो इंडिया के लिए रिप्रेजेंट किए, पर अभी थोड़ा ज्यादा मतलब रैपिड तरीके से टैलेंट उभर के आ रहे हैं। आप कैसे देखते हो चंडीगढ़ वुमेन्स क्रिकेट का राइज इन रिसेंट ईयर्स? चंडीगढ़ क्रिकेट इसलिए इम्प्रूव हो रही है, मैंने बताया ना, इट इज नॉट ओनली चंडीगढ़, यस। ऑल ओवर कंट्री में जो क्रिकेट है इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि एक तो सोशल मीडिया बहुत अच्छे से कवर कर रहा है। पहले विमेंस क्रिकेट को बहुत कम लोग कवर करते थे, बहुत कम कवरेज होती थी, लेकिन अब मेजर टूर्नामेंट्स कवरेज हो रही है। पैसा, मनी, मैच फी एट पार हो गई है। तो इट इज एज गुड एज अ प्रोफेशन टू एनी गर्ल एज इट इज टू द बॉय। तो यप। इस चीज से, और चंडीगढ़ में यू वोंट बिलीव इट, एक मेरे पास अभी जहां पर मैं कोचिंग कर रहा हूँ, आफ्टर टेकिंग माय वीयर्स फ्रॉम स्पोर्ट्स ऑडियो ऑफ इंडिया, यस। मेरा अपना जो कोचिंग सेंटर है, जहाँ पे एक्चुअली युवराज वगैरह सारे खेले थे, सेक्टर 8 है डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ना, तो वहां पर कर रहा हूँ। और वहां पे जो सबसे छोटा बच्चा जो मेरा ट्रेनी है, शी इज 7 years ओल्ड गर्ल, एंड उसका नाम भी नंदिनी है। ओह और नाइस। उस और मुखर्जी जी, वो देखिए, वो जब आती है, मतलब म, मैं आपको कैसे बताऊं, वो आएगी पहले, और यूजुअली जो बॉयज हैं या और लोग हैं, वो थोड़ा सा मेरे से विश करते हैं और चले जाते हैं। वो ऑल द वे, मैं ग्राउंड में कहीं पर भी हूँ, वो आएगी, मेरे को शेक हैंड करेगी, और फिर अपनी वहां जाके वो खेलेगी, एंड इट फील्स सो गुड। तो जब कल नंदिनी आई, तो मैंने बोला, देख नंदिनी, जूनियर नंदिनी, सीनियर में हैव अ। तो दिस इज काइंड ऑफ इम्पैक्ट, जो है लड़कियों के ऊपर, बच्चियों के ऊपर पड़ रहा है। तो जैसे देखिए क्या होता है, पिरामिड है, जितनी पार्टिसिपेशन ज्यादा, उतना टॉप के ऊपर जो है वो क्वालिटी निकल के आएगी। यस। तो जैसे काशवी गौतम ने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, शी इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर, यस। आई मीन, है ना। बट सम हाउ कुछ इंजरी विंजरी की उसकी या। प्रॉब्लम थी, मे बी शील गेट बेटर, अभी रिकवर कर जाएगी। क्योंकि क्रिकेट के अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, जब भी आपके मैं सभी को बोलता हूँ, मेरे को भी बताया मेरे कोचेज ने, तो मैं राज अंगद को भी बोलता हूँ, या नंदिनी को भी बोलता हूँ, अगर तुम्हारे छोटा सा भी निगल है, छोटा सा, तो ना, स्टॉप देयर, वहीं रुक जाओ। वो निगल अगर 4 दिन में अब ठीक हो जाएगा, अगर आप उसको कैरी करके खेलते रहोगे, तो वो 4 महीने में भी नहीं ठीक होगा। तो ये छोटी चीजें जो हैं वो बहुत जरूरी हैं। तो शायद काशवी के इंजरी हुई है, बैड लक कह लीजिए, कुछ भी यस। कह लीजिए, शी विल कम बैक गुड, और अच्छा आगे परफॉर्म करेगी। उसके पास बहुत एडवांटेज है, स्विंग बहुत अच्छा, बैटिंग अच्छी करती है, एंड वेरी पॉजिटिव क्रिकेटर शी इज। एकदम एकदम, हम लोग वही प्रे करेंगे कि काश भी जल्दी वापस आ जाए, जैसे आप बोले जी कि बहुत ही टैलेंटेड क्रिकेटर है। बट जी ये भी सच बात है कि आई थिंक मॉडर्न मॉडर्न डे क्रिकेट में वर्कलोड मैनेजमेंट, इंजरी मैनेजमेंट एक एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है हर एक प्लेयर के लिए। सर, जैसे आप बोले कि मतलब इतने सारे बच्चे जो अभी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, स्पेशली लड़कियों, तो 2025 ओडीआई वर्ल्ड कप विन्स शायद और एक जो लेयर ऐड किया है उसमें, शायद और भी बच्चे लोग शायद इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि हम लोगों को भी क्रिकेटर बनना है, हम लोगों को भी हरमनप्रीत स्मृति स्मृति मंदाना, जेमिमा रोड्रिगेज की तरह क्रिकेटर बनना है। बट सर, 2026 T20 वर्ल्ड कप जो है, हमारा ग्रुप बहुत ही टफ है। तो मेरा लास्ट सवाल यही है, बहुत टफ ग्रुप है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेदरलैंड्स है और इंडिया है ग्रुप 1 में। आप तो टीम देख ही चुके हो, आपको कैसे क्या लग रहा है टीम देख के, क्या आपका एक्सपेक्टेशन है? एक ना, छोटा सा, जैसे कहते हैं ना, जो लड़कियों की इंडियन टीम है, वो अभी कोई टीम उसके कंपैरिजन में नहीं है, दैट्स फॉर श्योर।
और ये टीम आगे आने वाले टाइम में बेटर होती चली जाएगी, बेटर होती जाएगी, क्योंकि पार्टिसिपेशंस ज़्यादा हो गई हैं, टैलेंट का पिरामिड बड़ा हो गया है, तो उसमें से पिक करना जो है वो, और आजकल बच्चे बड़े फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ WPL। तो फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं वो, ये लेके नहीं चलते भी हमको, हमने क्या रन होएंगे नहीं होएंगे, वो अपना नेचुरल गेम खेलते हैं। और आजकल कोचेज भी उस लेवल के ऊपर जो इंडियन टीम्स को हैंडल करते हैं, वो भी ये करते हैं भी तुम अपना नेचुरल गेम खेलो, कम वॉट में तुम अपना खेलो। तो मुझे नहीं लगता भी इंडियन टीम को वर्ल्ड कप में कोई परेशानी या कोई ऐसी चीज आएगी, क्योंकि एक छोटा सा हिच था, हम नहीं जीत पाए थे पिछली बारी, हम जाके फाइनल में हार गए थे। तो लेकिन वो जो हर्डल है वो हमने क्रॉस कर ली है, तो आई थिंक इंडियन टीम बहुत अच्छा करेगी। यस एब्सोल्युटली, हम लोगों का भी वही दुआ है कि बहुत अच्छे से टीम परफॉर्म करे। तब थोड़ा दिक्कत हुआ अभी रिसेंट जो साउथ अफ्रीका सीरीज हुआ उसमें, थोड़ा हम लोगों को देखा टीम थोड़ा स्ट्रगल किया, पर ठीक है, अभी थोड़ा, नेक्स्ट इंग्लैंड हाँ, सीरीज है और उसके बाद वर्ल्ड कप है, तो टोटल डिफरेंट गेम बॉल है, तो होपफुली टीम इंडिया अच्छे करेगी। यस, थैंक थोड़ा यू सर। स्ट्रगल थोड़ा यस स्ट्रगल किया, और आप ठीक कह रहे हैं, तो उन्होंने चेंजेस वेंजेस करी स्ट्रगल को यस देख। यस तो यस इंग्लैंड में अब जैसे प्रैक्टिस गेम्स में जैसा जो भी करेगी, उसके यस, बाद हमें लगेगा भी यार हाँ, हमारी टीम अब तैयार। फाइनली तैयार है। जी, Yes, absolutely. Thank you, sir, for joining in. Thank you, sir, for your time. Yeah, थैंक यू सर। and hopefully, Team India will do well, and definitely we'll have another top chat that श्योर after श्योर, that. थैंक यू, थैंक Okay, यू, थैंक thank यू you, thank सुनील जी, you. थैंक यू सो मच, या।